Hello champions, hope you all are doing fine. So today we are going to start very important topic from partnership fundamentals, that is fast adjustment. So we'll take few examples. So let's take the first example. Example number 1, you can write with me. Capital as on 1st April 2019. Gold and silver, there are two partners, gold and silver. So gold invested 6 lakh rupees and silver invested 4 lakh rupees, right? Two partners are there, gold and silver. As on 1st April, 1st April means opening capital is given as 6 lakh and 4 lakh. As per the agreement, as per the agreement means partnership deed, IOC is allowed at 10% per annum. Profit sharing ratio is equal, means 1:1, right? Net profit is given as net profit is rupees 4 lakh. Now I am repeating, gold and silver two partners are there. As on 1st April, this is their opening balances, capital opening balances. As per the agreement, IOC is given at 10% per annum. Profit sharing ratio is 1:1, means equal. Net profit is given as 4 lakh rupees. Now we have to prepare profit and loss appropriation account. Let's prepare profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. This is just for your understanding. Try to understand the logic behind past adjustment. Okay. So if you have to prepare profit and loss appropriation account, how you will prepare? First you will transfer net profit. So by net profit, figure is 4 lakh rupees. Okay. Then two side, 2 interest on capital. Gold's capital 60,000. Silver's capital 10% is the rate, so on 44 lakh rupees, 40,000. Silver's IOC, silver's capital 40,000 rupees, total 1 lakh rupees. Now what you will do with the balance amount? You will distribute 3 lakh rupees, 4 lakh minus 1 lakh in this ratio, that is 1:1. So 2 profit transferred. This is simple. 2 profit transferred in 1:1 ratio, that is gold's capital account. You can write account here also. Gold's capital, silver's capital account. Ratio is 1:1. Balance is 3 lakh. So 1 lakh 50, 1 lakh 50 each. 1 lakh 50, 1 lakh 50. Total comes to 3 lakh rupees. Now we will close this. 4 lakh, 4 lakh. Right? So this is our profit and loss appropriation, the correct one. Just assume if the accountant missed this IOC part. Okay, now we will prepare the wrong profit and loss appropriation. This is correct one. Now the wrong one. Profit and loss appropriation account, the wrong one. Okay. Why I am doing this exercise? Just to make you understand the reason,
the logic behind profit past adjustment. Okay, so profit and loss appropriation, what I said, first we'll transfer net profit by net प्रॉफिट. हर चीज का लॉजिक मालूम होना चाहिए, रटना नहीं है हमको. यहाँ पे 4 लाख रुपीज. नाउ एज्यूम करते हैं हमारा जो अकाउंटेंट था वो रवि था. ठीक है, अब रवि ने क्या किया, रवि क्योंकि बहुत ज्यादा उसको टॉफीज जगह उसके सामने अगर आ जाए वो सब कुछ भूल जाता है, वो दुनिया भूल जाता है अगर उसको टॉफीज मिल जाए तो. अब उस दिन किसी का बर्थडे था तो रवि सर को किसने क्या किया, कुछ टॉफीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रवि सर के पास पहुंच गए. रवि सर कौन, रवि जो अब 12th में है, राइट. तो उसके पास पहुंच गए. अब रवि ने क्या किया, यहाँ पे टॉफी को देखकर वो आईओसी देना भूल गया. तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा जो नेट प्रॉफिट था, पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1 रेशो अमंग गोल्ड एंड सिल्वर. तो गोल्ड कैपिटल अकाउंट, सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट. 1:1 में क्या जाएगा आपका 2 लाख रुपीज ऑब्वियसली. तो रवि ने क्या किया, टॉफी को देखकर खुश होकर उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट को पूरा इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. आईएस उसके दिमाग से बिल्कुल गायब हो गई. तो उसने यहाँ पे इसको क्लोज करके बंद कर दिया. एज यू नो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. अब फाइनल अकाउंट यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया. अकाउंटेंट ने एप्रोप्रिएशन बनाकर क्लोज कर दिया. आफ्टर फ्यू डेज जब वो चेक कर रहे थे अपना, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि हमने तो आईओसी दी नहीं है, यहाँ पे आईओसी ओमिट कर दी है हमने यहाँ पे. नो व्हाट टू डू. एज यू नो, इन अकाउंटेंसी कटिंग्स, ओवरराइटिंग्स, करेक्शंस, ऑल्टरेशंस आर नॉट अलाउड. नाउ हाउ वी विल रेक्टिफाई दिस एरर. सो नाउ वी विल रेक्टिफाई दिस एरर थ्रू एडजस्टमेंट टेबल. हमको क्या करना होगा, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे. उसके बाद वी विल पास 1 एडजस्टमेंट एंट्री. इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर ये काम करना पड़ता है. अगर पूरी ईयर में कुछ मिस्टेक्स हो गई है, कुछ एरर्स हो गए, आपने कुछ ओमिट कर दिया है ट्रांजेक्शन, तो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर आप क्या करोगे, पास्ट एडजस्टमेंट्स जो है आप क्या करोगे, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पास्ट में हमने कुछ एरर किया है उसको थ्रू एडजस्टमेंट अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर रहे हैं. हम यहाँ पे कुछ करेक्शन नहीं करेंगे. हम इस अकाउंट के अंदर सपोज ये अकाउंट हमने बना दिया, करेक्ट है, ये वाला बनाना ये था, बना ये दिया अकाउंटेंट ने. अब इसमें आप यहाँ जाके करेक्शन नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड. अब आप इसको कैसे करेक्ट करोगे, थ्रू एडजस्टमेंट टेबल. नाउ सी एडजस्टमेंट टेबल जो है मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगी, 1 लॉन्ग मेथड, 1 शॉर्ट मेथड. जो शॉर्ट मेथड होगा दैट वी विल फॉलो इन एग्जामिनेशन, बट लॉन्ग मेथड आप समझ लो कि कंसेप्ट क्या है, कैसे हम लोग जो है एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे. ओके, सो एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू, ये एक्चुअली भी वर्किंग नोट होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं. मार्क्स जो होते हैं वो आपकी एंट्री के होते हैं, बट कई बार एग्जामिनर्स के कहते हैं 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर. हाफ टू 1 मार्क वो आपको दे सकते हैं ऑन दिस टेबल. अदरवाइज जो मार्क्स होते हैं वो प्योर आपकी एडजस्टमेंट एंट्री के होंगे, जो इसके बाद हम लोग पास करेंगे. सो एडजस्टमेंट टेबल में ये जो कॉलम है, दिस इज फॉर गोल्ड एंड दिस इज सिल्वर्स कॉलम. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द करेक्ट अमाउंट, कि देना कितना था, करेक्ट अमाउंट क्या था. करेक्ट अमाउंट क्या था, यहाँ ये था आपका, आपको ये देना था करेक्ट अमाउंट. तो यू विल राइट आईओसी, कितना देना था, 60,000 एंड 40,000, राइट. और तो कुछ नहीं था. प्रॉफिट था आपका यहाँ पे, गोल्ड को कितना दिया हमने, 1,50,000, सिल्वर को कितना दिया, 1,50,000. इसका यहाँ पे पहले टोटल कर लेते हैं. टोटल कम्स टू 2,10,000, 1,90,000. सिल्वर का टोटल जो आया कितना उसको मिलता है, 1,90,000. गोल्ड को कितना मिल रहा है, 2,10,000. यहाँ तक क्या हमने किया कि एक्चुअल में उनका बनता कितना, उनको देना, अगर उनको आईओसी मिलती और तब उनका प्रॉफिट क्या होता, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली. करेक्ट अमाउंट, आईओसी और प्रॉफिट हमने जो उनको देना है. नाउ वी विल राइट wrongly distributed amount. हमने क्या किया, जो अमाउंट हमने उनको गलत दिया है वो कितना दिया है. हमने ऑब्वियसली जो है उनको 2,10,000 एंड 1,90,000,
टोटल जो है आपने जो 4 लाख रुपीज है उनको आपने इक्वल रेशो में दे दिया है, राइट। यही किया ना हमने, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट दैट इज 4 लाख इन 1:1। आपने यही तो गलती करी है, आपने मतलब रवि ने 2 लाख 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। 2 लाख 10 माइनस 2 लाख 10,000 आपका बैलेंस आ गया। 1,90,000 माइनस 2 लाख आपका 10,000 अगेन यहाँ पे आ गया। अब आप ये देखो करेक्ट अमाउंट, एज पर दिस करेक्ट अमाउंट गोल्ड को मिलना चाहिए था 2,10,000। उस बेचारे को सिर्फ रवि की गलती की वजह से उसको सिर्फ 2 लाख रुपीज मिला एंड गोल्ड इज वेरी सैड कि उसको जो है 10,000 कम मिला है। एंड सिल्वर को इफ यू सी मिलना था एज पर करेक्ट अमाउंट 1,90,000 बट उसको मिल गया 2 लाख एंड ही इज वेरी हैप्पी कि मुझे 10,000 ज्यादा मिल गया है। अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, हमको गोल्ड को 10,000 देना है और सिल्वर से 10,000 लेना है। सो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओगे। क्यों लगाया, क्योंकि इसको जो है आपको 10,000 और देना है। एज पर करेक्ट अमाउंट ही शुड गेट 10,000 मोर एंड सिल्वर को आप यहाँ से 10,000 जो है उसे लोगे, माइनस करोगे, उसको डेबिट करोगे। सी अब जो आपकी एंट्री बनी वो एंट्री बनी आपकी सिल्वर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 माइनस जो है मतलब क्या है, आपको लेना है, इसलिए मैंने उसको डेबिट में लिखा है। गोल्ड को मुझे क्रेडिट करना है, देना है, तो 2 गोल्ड कैपिटल अकाउंट अमाउंट आपका आ गया 10,000 एंड यहाँ पे भी आ गया 10,000। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपकी एंट्री पास हो गई। नरेशन में यू विल राइट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। देखो हमने कहीं कुछ भी रब नहीं किया, कुछ करेक्शन नहीं किया, कुछ कटिंग नहीं किया, बट उसके बाद भी हमने क्या किया, यहाँ पे करेक्शन करके हमने उसको एंट्री के थ्रू हमने उसको दिखा दिया। एंट्री के थ्रू में पता चल गया कि सिल्वर को 10,000 पे डेबिट करना है और गोल्ड को 10,000 देना है। दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट, मींस पास्ट में आपने कुछ गलतियां करी हैं, अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां करी हैं, फर्म ने कुछ गलतियां करी हैं, अब उसको आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। वो गलती हो सकती है कि आपने आईओसी जो है बिल्कुल कंप्लीटली ओमिट कर दी और मे बी जो है आपने आईओसी 9% की जगह 10% दे दी और 10% की जगह 8% दे दी आपने। तो इसको जो है हम लोग करेक्शन करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे थ्रू एडजस्टमेंट टेबल एंड लास्ट में आप क्या करोगे, यू विल पास एडजस्टमेंट एंट्री। जो मार्क्स होंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, मार्क्स जो होंगे वो आपके एडजस्टमेंट एंट्री के होंगे। जो ये आपका पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस इज योर वर्किंग नोट। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, उसको भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। ओके, नाउ सी द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड टू बी फॉलोड इन योर exam, shortcut method. Again 2 columns, gold, silver, right? Then here we will write correct amount. Correct amount IOC कितना देना था, 60,000 to gold 40,000 टू। अब मुझे आप ये बताओ, ये देखकर कि जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक कहाँ हुई है। वो मिस्टेक जो हुई है वो आपकी हुई है सिर्फ आईओसी को दिखाने में। आपने यहाँ पे आईओसी जो है वो मिस कर दी है। तो अगर हम ये बोले कि हम शॉर्टकट मेथड जो यूज करेंगे उसमें हम वही चीज को करेक्ट करेंगे जहाँ पे फर्म ने गलती करी है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ यहाँ बताओ कि करेक्ट अमाउंट जो देना था वो क्या था, आईओसी, क्योंकि आईओसी ही आपने मिस करना। प्रॉफिट तो इन एनी विच केस आपको देना ही था। तो जो ये प्रॉफिट हम यहाँ दिखा रहे हैं 1,50,000 जो हमने लॉन्ग मेथड एक्सरसाइज पूरी करी है उसमें 1,50,000 जो दिखाया है वो तो एक्चुअल में देना ही था। वो सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगर आप पूरा उसको समझने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि करेक्ट अमाउंट क्या था और गलत अमाउंट क्या था। लेकिन जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे तो शॉर्टकट मेथड में आप वही चीज दिखाओ जहाँ पे गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ सिर्फ आईओसी में हुई है। इस पार्ट में जो है वो गड़बड़ हुई है।
आपको 4 लाख में से 3 लाख तो प्रॉफिट देना ही था दोनों पार्टनर्स को, 1,50,000 1,50,000। तो जो रिमेनिंग आपका बचा 1,60,000 एंड 40,000, वो हम शॉर्टकट मेथड में उसको यूज करके देखेंगे। अब इसका आप देखो टोटल कितना हुआ, 60 + 40 आपका हो गया 1 लाख। तो 1 लाख को जो है हमने नहीं दिखाया, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो उनको हमने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही हुआ है ना आपका, आपने उनको प्रॉफिट ज्यादा दे दिया क्योंकि आपने आईओसी नहीं दिखाई। आपने 1 लाख से उनका प्रॉफिट बढ़ा दिया, 1 लाख से उनका प्रॉफिट बढ़ा दिया आपने, क्योंकि जो 1 लाख वो था वो थी आईओसी, जब वो दी नहीं तो आपने क्या किया, आपने उसको प्रॉफिट के रूप में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, जो ये 1 लाख है इसको अब हम देखते हैं, wrongly distributed in equal ratio। क्या किया हमने, 1 लाख को जो गलत हुआ है हमने उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50,000 50,000। अगेन बैलेंस करेंगे, 60,000 माइनस 50,000 10,000, 40 माइनस 50 अगेन 10,000। देखो आंसर वही आएगा, समझने की कोशिश करो। वहां पे हमने पूरी एक्सरसाइज करी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पास्ट एडजस्टमेंट में हो क्या रहा है, बट एक्चुअल में जो आप एग्जाम में करोगे आपको क्या दिखाना है, आप वही चीज उठाओ जहां पे फॉर्म ने गलती करी है, जहां पे अकाउंटेंट ने गलती करी, अननेसेसरी हम बाकी एक्सरसाइज क्यों अपने बढ़ाए, राइट। तो यहाँ पे आप देखो आईओसी थी, मिस कर दी, हमने क्या किया, उतने से जो था प्रॉफिट हमें पता चल गया कि हमने ज्यादा दे दिया। अब आप देखो जब प्रॉफिट 1 लाख को आपने इक्वल रेशियो में दिया, अब आप यहाँ देखो गोल्ड को मिलना था 60,000 बट मिला कितना, 50,000। सिल्वर को मिलना था 40,000, उसको मिल गया 50,000। दैट मीन्स आप गोल्ड को 10,000 और दोगे और सिल्वर का जो आप 10,000 है उससे वापस ले लोगे। अगेन आपकी एंट्री जो है वो यही पास होगी, सिल्वर कैपिटल टू गोल्ड कैपिटल 10,000 रुपीज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट लेवल अप हो रहा है हमारा, समझने की कोशिश करो। 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बोर्ड में आता है इसमें से, चाहे वो आपका 3 मार्कर में आ जाए, 1 मार्कर में भी आ सकता है, बट उसके लिए भी आपको क्या है, कैलकुलेशन पूरी आनी चाहिए। 1 मार्कर में भी आया क्वेश्चन ये, कैन यू इमेजिन ये क्वेश्चन अगर 1 मार्कर में आ जाए, आपको पूरी एक्सरसाइज तो करनी है उसके लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हम कर क्या रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बनना आपका ये था, फर्म ने ये वाला एप्रोप्रिएशन बना दिया जिसमें कि आईओसी बिल्कुल कंप्लीटली ओमिट कर दी है। एडजस्टमेंट टेबल ये आपका लॉन्ग मेथड था जिसमें आपने पूरा बताया कि करेक्टली उनको मिलना क्या था पार्टनर्स को और रॉन्गली क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 60,000 एज पर योर एप्रोप्रिएशन टेबल अगर आप देखो तो आपको 60,000 गोल्ड को आईओसी मिलनी थी, सिल्वर 40,000, प्रॉफिट 1,50,000 1,50,000 ईच। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट जो था 4 लाख आपने 1:1 की रेशो में दे दिया। अगेन आपने जब इसको बैलेंस किया 2,10,000 माइनस 2 लाख तो आपको पता चला गोल्ड को कम मिला है 10,000 तो आपने उसको और दे दिया। यहाँ देखा पता चला सिल्वर को इस गलती की वजह से 1,90,000 जो है उसको मिलना चाहिए था बट उसको फर्म ने दिया 2 लाख, तो 10,000 जो है वो शॉर्ट मिला, तो उसको 10,000 जो है वो ज्यादा मिल गया। तो अब हम सिल्वर से लेके गोल्ड को दे देंगे, तो सिल्वर को हम डेबिट करेंगे, गोल्ड को क्रेडिट करेंगे। सेम जो हमने यहाँ पे ये एक्सरसाइज करी इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। रीजन बीइंग हम वही चीज जो है करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे जिसमें गलती हुई है। अननेसेसरी वी विल नॉट इंक्रीज अवर वर्कलोड। तो हमने यहाँ पे जो आईओसी पार्ट था सिर्फ उसको शो किया है कि 60,000 एंड सिल्वर की 40,000 थी, इतने से आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया, गलती करी ना इसी इतना। एक्चुअल में तो यही पार्ट आपने मिस किया, ये तो मिलना ही था तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। तो यहाँ पे हमने जो 1 लाख आया इनका टोटल करके देखा 1 लाख, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशो में 50,000 50,000। अगेन आपने प्लस माइनस करा, ये करेक्ट अमाउंट था, ये आपका रॉन्ग अमाउंट था। मीन्स 10,000 इसको कम मिला है तो हमने इसको प्लस मतलब देना है। इसको मिलना था कितना 40,000, मिल गया 50, दैट मीन्स इसको ज्यादा मिला है तो हम इससे वापस लेंगे 10,000। एंट्री आपकी सेम पास होगी। दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री। I hope this is clear. Now let's take another example. So next example, example number 2, capital as on 1st April, Laddu 8 lakh rupees, Bhola 4 lakh rupees.
two partners are there again, and as per deed IOC is to be allowed at 10% per annum. IOC 10% per annum. Net profit is 6 lakh rupees. Profit sharing ratio is given as 3:2. Again I am repeating capital as on 1st April. See, I am repeating, I am focusing on 1st April. The reason is that if in case 31st March is given in the question, you have to calculate opening capital to calculate IOC. IOC is allowed only on opening capital. I hope you remember this. अगर 31st मार्च का आपको बैलेंसेस दिए हैं, you have to calculate opening capital for IOC. अगर IOC हमने डायरेक्ट 31st मार्च वाले कैपिटल पे दे दी तो आगे क्वेश्चन में गलती हो जाएगी. So कैपिटल एज ऑन 1st April 8 लाख रुपीज. लड्डू और भोला ने कितना दिया? 4 lakh rupees. As per the deed, IOC is to be allowed at 10% per annum. Net profit is given as 6 lakh rupees. Profit sharing ratio is 3:2. बट अगेन यहाँ पे भी IOC जो है ओमिट हो गई है. IOC जो है वो नहीं दी है, राइट. तो अब अगेन इस एग्जाम्पल में भी हम लोग विल प्रिपेयर द करेक्ट एप्रोप्रिएशन, देन रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, देन इसके अंदर भी हम लोग जो लॉन्ग एडजस्ट आपका जो मेथड होगा एडजस्टमेंट का वो भी करेंगे और शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, राइट. तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Okay, so profit and loss appropriation account, this is the correct one. So by net profit, figure is 6 lakh rupees. To interest on capital, rate is 10%. interest on capital, लडूस कैपिटल अकाउंट. एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे नॉर्मल कैपिटल की जगह अगर फिक्स्ड होता, इन दैट केस हम यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करते और जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती वो भी हम लोग थ्रू करंट अकाउंट ही पास करते हैं. ओके, सो लडूस कैपिटल अकाउंट, भोला's capital account. So 3:2 is profit sharing ratio. 10% आपकी IOC का रेट है. So 80,000, 40,000. Okay. So 1,20,000 टोटल आपका IOC का अमाउंट आ गया है. 1,20,000, 80,000 and 40,000. Now 6 lakh minus 1,20,000 आपका जो बैलेंस आया 4,80,000. 4,80,000 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 4,80,000 into 3 divided by 5, that comes to 2,88,000. So to profit transferred, Laddu's capital account, Bhola's capital account, 2,88,000, then 4,80,000 into 2 divided by 5, that comes to 1,92,000. ये आ गया प्रॉफिट आपका भोला का. इसको क्लोज कर देते हैं एप्रोप्रिएशन को. दिस इज द करेक्ट वन. 6 लाख बोथ द साइड हमने यहाँ पे दे दिया. इसको क्लोज करके बंद कर दिया. नाउ अब हम लोग रॉन्ग एप्रोप्रिएशन बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Again 4 columns. This is the wrong one. में क्या किया? Again हमने IOC नहीं दी है. So by net profit, figure is 6 lakh rupees. हमने क्या किया? नहीं दी है IOC. तो पूरा का जो पूरा प्रॉफिट था हमने 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. टू नेट प्रॉफिट, लड्डूस कैपिटल अकाउंट, भोलास कैपिटल अकाउंट. 6 लाख, पहले क्लोज कर लेते हैं इसको. 6 लाख,
राइट। हमने 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:5 की रेशो में, दैट कम्स टू 3,60,000 एंड 2,40,000, राइट। हमने आईओसी जो था यहाँ पे जो हमने करेक्ट वाला दिखाया अप्रोप्रिएशन, ये बिल्कुल ठीक है, बनना ऐसे चाहिए था, बट फर्म जो है उसने आईओसी को ओमिट कर दिया, मींस दिया ही नहीं पार्टनर्स को। तो जो पूरा का पूरा प्रॉफिट था 6 लाख का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2, दैट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको विदाउट कटिंग, विदाउट करेक्शन हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन करेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ कुछ करेक्शन नहीं करेंगे, थ्रू एडजस्टमेंट टेबल देन वी विल पास द एडजस्टमेंट एंट्री, इसको हम करेक्ट करेंगे। अगेन वी विल फॉलो द सेम मेथड, पहले हम लोग जो है लॉन्ग मेथड करेंगे, देन हम लोग शॉर्टकट मेथड करेंगे। हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम्पल में नहीं करेंगे, बट अभी जस्ट टू मेक इट क्लियर कि क्या हो रहा है, इसलिए हम इसको पूरा जो है लॉन्ग एक्सरसाइज हम लोग इसकी फॉलो कर रहे हैं। सो लॉन्ग मेथड, अगेन adjustment, you will write adjustment table, right, adjustment table, correct amount, this is laddu and bola, correct amount IOC and profit 80,000 IOC, 40,000 for Bhola. Profit 2,88,000, 1,92,000. Now we will total this 863. Okay, and 40,000, so 42. 9,232, ओके, 2,32,000 ये आ गया टोटल आईओसी प्लस प्रॉफिट। लड्डू को इतना मिलना चाहिए था 3,68,000 एंड भोला को मिलना चाहिए था 2,32,000। आपने 40,000 आईओसी के अंदर प्रॉफिट को ऐड करके भोला का भी निकाल लिया, सेम वे आपने लड्डू का भी टोटल अमाउंट निकाल लिया। नाउ अगर आप ये देखो कि हमने जो है इनको रॉन्ग जो दिया है अमाउंट, वो क्या दिया है, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, दैट इज, जो आपने इसका जो टोटल था 6 लाख होगा आपका, 6 लाख इन 3:2, ये किया हमने 3:2 के अंदर हमने गलत इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि आपका आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 3,60,000, 2,42,000। अगेन अब हम क्या करेंगे, करेक्ट अमाउंट और रॉन्ग अमाउंट इसको आप माइनस करेंगे। 3,68,000 में से 3,60,000 आपने माइनस किया, दैट कम्स टू 8,000 रुपीज। 2,32,000 माइनस करोगे 2,42,000 में से, यू विल गेट अगेन 8,000। अब आप देखो करेक्ट अमाउंट, एज पर करेक्ट अमाउंट लड्डू को मिलना चाहिए था 3,68,000, बट उसको कितना मिला इस मिस्टेक की वजह से, ओनली 3,60,000। 8,000 उसको शॉर्ट मिला है, कम मिला है। भोला को मिलना कितना चाहिए था 2,32,000, बट उसको मिला कितना 2,42,000। तो 2,42 नहीं है यहाँ पे आपको, दिस इज 2,40,000। सो 2,40,000 माइनस 2,32,000, 8,000 आपका। ये चेक होता है आपका, ये दोनों चीजें सेम आना चाहिए, राइट। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट अगर होगा, दैट मीन्स आपका जो है ये करेक्शन जो आप कर रहे हो यहाँ पे कैलकुलेशन, वो आप करेक्ट वे में कर रहे हो। सो अब यहाँ पे जो है इसको मिलना चाहिए था 8,000 और हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ओके। मिलना था इसको 2,32,000, मिल गया 2,40,000, दैट मीन्स 8,000 इसको ज्यादा मिला है, इससे हम 8,000 ले लेंगे। तो एंट्री क्या पास हुई आपकी, भोलास कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू लड्डूज कैपिटल अकाउंट, भोला's कैपिटल अकाउंट टू लड्डूज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 8,000। ये दोनों हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आपका सेम अमाउंट आना चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी द शॉर्टकट मेथड। नाउ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड अगेन अब हम देखेंगे गलती कहाँ पे हुई है। गलती कहाँ हुई थी? सिर्फ आईओसी में, आईओसी नहीं दी है। तो अगेन हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं। दिस इज लड्डू, भोला, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अमाउंट आईओसी, आईओसी 80,000 लड्डू को देना था एंड 40,000 फॉर भोला। रॉन्गली इसका टोटल देख लेते हैं, कितने से हमने गलती करी है। टोटल अमाउंट जो है वो कितने से गलत हुआ है? 1,20,000 से। मींस 1,20,000 से जो है वो प्रॉफिट उनका इंक्रीज हो गया, क्योंकि आईओसी टोटल आप देख रहे हो 80 + 40 1,20,000। इतने से जो अगर आपने आईओसी नहीं दी, क्या मतलब हुआ? इतने से आपने आईओसी नहीं दी, इसका मतलब ये हुआ कि इतने से प्रॉफिट उनको ज्यादा मिल गया है, दोनों पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो wrongly distributed amount, that is 1,20,000 in 3:2। ठीक है, ये हमने किया 1,20,000 into 3 divided by 5, 72,000 आ गया आपका लड्डू का अमाउंट एंड 48,000 फॉर भोला। अगेन इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ गया 8,000, यहाँ पे भी आपका आ गया 8,000। सी वही चीज हो गई, लड्डू को मिलना था 80,000, इस मिस्टेक की वजह से उसको मिला 72,000, दैट मीन्स 8,000 उसको शॉर्ट मिला है। अब उसको 8,000 और आपको देना पड़ेगा। भोला को 40,000 माइनस 48 किया, 8,000 आया, मीन्स मिलना उसको कितना चाहिए था? 40,000। इस मिस्टेक की वजह से, इस ओमिशन की वजह से जो हमने आईओसी नहीं दी है, उसको कितना ज्यादा मिल गया अमाउंट? 48,000 में से, मतलब 8,000 उसको ज्यादा मिल गया। उसको मिला 48, मीन्स 8,000 उसको ज्यादा मिल गया। इससे हम ये 8,000 ले लेंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनी? भोला's कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू लड्डू's कैपिटल अकाउंट 8,000। हमने भोला को डेबिट कर दिया, लड्डू को क्रेडिट कर दिया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम में शॉर्टकट मेथड आप लोग यूज करेंगे। जो गलती हुई है, जिस चीज में गलती हुई है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है, उसी को करेक्ट करना है। उसको हम रेक्टिफाई करेंगे थ्रू एडजस्टमेंट टेबल, जो कि हमारा वर्किंग नोट होगा। एंड लास्ट जो हमारा स्टेप होगा दैट विल बी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में जो भी हमने गलतियां करी है, थ्रू दैट एंट्री, लाइक 11th में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था, इफ यू रिमेंबर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन मिस हो गई हैं फर्म से, उनको हम लोग थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री, वहाँ पे भी आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री, रिमेंबर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते थे, यहाँ पे बस नाम चेंज हो गया है, उसको बोल रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। चीज़ वही है आपकी, बट आपको ये देखना है कि हाँ यहाँ पे आईओसी नहीं दी, यहाँ हो सकता है आईओसी जो है फिगर गलत कर दी। ये भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमने किसी और में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को, वो भी आगे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, बट अभी जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल अभी और करते हैं, उसके बाद हम ग्रे वाल के क्वेश्चंस लेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ in the next video we will have few more examples, then we will start our gray wall question.